बाबा फतेह सिंह जी और सन्मान योग माता गुजरी जी, उन्हां दे शहादत और तसीहियां वाले अस्थान ते जिस जगह ते ठंडे बुरज विच रख के तसीहे दिते गए, नीहां विच चिण दिता, ज़िबा कर दिता गया। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जी विखे दीवान टोडरमल जो हाल है, दीवान अस्थान है, इस जगह ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब की खजूरी विच अज आप समूह सिख जगत सतगुरां दे सब तो छोटे साहिबजादे धन धन बाबा फतेह सिंह जी, उन्हां दा जन्म दिहाड़ा आप जी मना रहे हो। आप जी नूं श्री दरबार साहिब जी दे कीर्तनियां ने सन्मान योग भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी, भाई सतनाम सिंह जी और सन्मान योग ज्ञानी खरपाल सिंह जी आप नाल विचारां दी सांझ पा के गए ने। अज आपां शहादत दा जिक्र नहीं करांगे, क्योंकि अज बाबा जी दा जन्म दिहाड़ा है। समय विच रह के समाप्ति करांगा। आप जितने इस अस्थान ते इकत्तर हो, देशां परदेशां विच बैठे, आप जी जो हर रोज पिछले 2 दिन हो गए, आप पहला चमकौर साहिब, माछीवाड़ा साहिब और अज गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और कल दा दीवान ज्योति स्वरूप, उस तो बाद शहादत दा 15वाड़ा सफरे शहादत भी दीवान नाल ही प्रारंभ होने ने। जिवें इस वरे बाबा जी दे जन्म दिहाड़े नूं, इस दिवस नूं फतेहगढ़ साहिबी दीवान विच जां इस समागम विच लै लिया गया। जिवें ज्ञानी जी हुणां ने आप संगत नूं विशेष ये बेनती कीती है, प्रबंधक वीर बैठे आ, यतन करांगे कमेटी भी सहयोग देवे करे ते दे रहे ने सहयोग, ते असी भी यतन करांगे। जकारा आप जी ने गजाया है, भाई हरजिंदर सिंह जी नूं बेनती करांगा कि इन्हां समागमां दे विच दीवान जन्म दिवस दा इत्थे ही मनाया जाए। आओ साध संगत, आप जी करो किरपा, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप संगत ने ठंडे बुरज वाले अस्थान ते भी मत्था टेकिया है और सतगुरु जी दे लालां दा जो शहादत वाला थां है, उस जगह ते भी आप संगत ने नमस्कार कीती है। हुण संगत की सहूलत वास्ते तकरीबन हर गुरुद्वारा साहिब जी विखे अंदर प्रवेश करदियां होयां, चाहे बोर्ड होवे चाहे स्क्रीन होवे, तकरीबन हर गुरुद्वारा साहिब विखे प्रवेश करदियां
ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕੇਵਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣੈ ਖਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖਾ ਦੂਰ। ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣੈ ਖਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖਾ ਦੂਰ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣੈ ਖਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖਾ ਦੂਰ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਰਜਿੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਰਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ 3 ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਸਿਰਜਨ, ਵਿਸਿਰਜਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨ। ਸਿਰਜਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ। ਉਤਪਤੀ ਔਦ ਪਰਲੋ ਲੈ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਰਲੋ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਧੁਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਮ ਤੌਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਪਿੰਗਲ, ਉਹ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਕੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੈਨ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਰੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ
तजर्बा जां साडे अंदर महसूस होना नासका राहीं ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਾਠ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਤਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ 135 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 135 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1170 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ, 9ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਪਣੇ 5 ਪੁਸਤਕ ਚੋਲੇ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ
कि मेरा वजूद मेरा शरीर है, ये शरीर इक्को वेले सिर्फ इक्को थां ते प्रकाशित होवेगा। मैं इहो जिहे गुरु नाल इहो जिहे शब्द नाल तुहानूं जोड़न लग्या, रहिंदी दुनिया तक इक्को वेले करोड़ां सिख इस गुरु दे दर्शन करया करनगे, इक्को वेले बस। ये साडे इतिहास ने लिखिया। ते जेड़े शब्द कहे सी तकरीबन मंजी साहब जदों कथा करने पहले प्रकाश की हर कथावाचक वो शब्द दोहरांदा है कि गुरु अर्जन साहब कहंदे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सा पंथ। अगे भाई साहब लिख दिया अदब संग तब ग्रंथ तो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। उत्थे साडे इतिहास ने शब्द आवाज लिखिया है ते साडे पिंडां च अजे तक ये शब्द वरतदे सन कि अमृत वेले बाबा जी ने जदों आवाजा दिता, साडे बजुर्ग कहंदे सन। हुक्मनामा शब्द बाद विच बनदा, अजकल बने। पहला शब्द सी सिर्फ आवाज, आवाजा, फिर ये शब्द आ गया वाक, फिर ये शब्द बन गया मुख वाक। हुण अजकल ये शब्द असीं हुक्म जां हुक्मनामा कहने आ, पर इहदी शुरुआत आवाज तो बनी है। आवाज ते बाणी पर्यावाची शब्द ने। वाणी संस्कृत असीं पढ़ने, इहदा अर्थ भी आवाज ही है ना। ते वाणी झूठी भी हुंदी है ते वाणी सच्ची भी हुंदी है। सतगुरु ने इस नूं तद भाव रूप दे दिता, बाणी कह दिता, शब्द वाणी कह। असीं आनंद साहिब च बाणी नाल लफ्ज़ सच्ची भी पढ़ने आ ते बाणी नाल कच्ची भी पढ़ने आ। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, आवाज कच्ची भी है। ते आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, कच्ची भी और सच्ची भी। पर उत्थे सतगुरु ने जदों कहा कि लेहो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। सुई महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। जदों दास अज मत्था टेकन गया, मेरे मन सी कि अज जन्म दिहाड़े ते बोलना है। भाई साहब ने शब्द पढ़ के भी गए, गुज्जी छन्नी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी दात। यदि भी थोड़ी जी अर्ज करांगा। ते महाराज अज माता जी दे स्थान ते साहिबजादियां दे आपने पढ़िया होना, जदों बुरज विच गए ते उत्थे लिखिया सी गुरु नानक साहब दे बचन, दोए दीवे 14 हट नाले, जेते जी तेते वणजारे, खुले खट हुआ व्यापार, जो पहुंचे सो चलन हार, धर्म दलाल पाए निशान, नानक नाम लाह परवान, कर आए वजी वधाई, साच नाम की मिली वडाई। ये सारियां ने तुसी अज ठंडे बुरे ते हुक्मनामा पढ़िया होना। जिन्हां ने किते भी जाओ गुरुद्वारा साहब, मैं बेनती करांगा जरूर जो पवित्र शब्द लिखिया उन्होंने पढ़ो जरूर, वो सब लई इक्को जिहा है। हुण जदों असीं इत्थे मत्था टेकिया ते मेन कवाड़ दे सामने सतगुरु गुरु अर्जन देव दा बचन सी, जांको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्तां कै जाका सतगुरु पूरा। दो शब्द मैं ये तां कहा कि असी बाबा जी दा जन्म दिहाड़ा शहादत वाली थां ते मनाण आए हैं। हाल आप सब नूं पता है बाबा जी दा जन्म श्री आनंदपुर साहिब होया, पर अज एक गल पल्ले बन के जानी है आपां सारे कि जदों असी अज गए ते अज सानू उस स्थान ते जन्म दिहाड़े बुरज वाले स्थान ते शहादत वाले स्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू केड़े बचन कमाण वास्ते दिते। बड़ा सौखा जिहा हो जाएगा। मैं थोड़े जिहे दे अर्थ करने चाहना, क्योंकि असी अज इत्थे जदों आए हैं जन्म वाले दिन, पहला है गुरु नानक साहिब दा ये सलोक है, दोए दीवे 14 हट नाले। मैनूं पता है कई साल पहला मैं इस सलोक की इत्थे कथा करके गया, मेरे जेहन च बिल्कुल भुलदा नहीं, जिन्ने साल हो गए ने आउंदे अजे तक भी किहड़े साल किहड़ी कथा कीती। हुण इत्थे गुरु जी कहंदे ने एक हुंदा है रहण वाला घर, एक हुंदा घर नूं चलाण वाला बाजार। सीधी गल, एक हुंदा बाजार, एक हुंदा घर। व्यापारी पुत्रां नूं पता है जिहड़े व्यापार करदे आ कि जिस बंदे दा बाजार खट्टी दुकान चलदी है ओदा घर हमेशा ही वसिया रहेगा, ते जिहड़े बंदे दी दुकान चली गई चेते रखियो ओदा घर भी कई बारी चला जाता है। बाजार है ते दुकान है,
जे बाजार नहीं तो चेते रखियो वाहगुरू, दुकान नहीं बाजार नहीं तो घर नहीं। गुरु साहब ने शब्द की वरते। लोग बाजार बनाते अजकल, चलो आ बिजली कैसी लाइट स्ट्रीट लगी है, दीवे बलते आ चानने, पर रात नूं है ना। महाराज कहते ने वो इंसान है, सानू उपदेश देंदे कि जिस धरती ते तू आया अज मत्था टेकन, एक गल समझ के जाई, तू इस संसार विच एक व्यापारी बन के आया है। ये संसार एक बाजार है। दिने सूरज चढ़दा है, ये दिन का दीवा है। रात नूं चंद्रमा आउंदा है, रात का दीवा है। ये दो दीवे ने ते 14 वट नाले। असल च जेड़े 14 शब्द है ना, ये इस्लाम नाल रिलेटेड है। ते इस बारे सानू सिखां नूं एवें वाल दी कि खल नहीं खिंचनी चाहिए। जिमें कई बारी 84 लाख जून है कि नहीं जी, ये 14 तबक है ने कि नहीं। हुण मैं एक बेनती करा, जदों गुरु टोटैलिटी च समुचता च गल करनगे उदों 14 लफ्ज भी वरतणगे, ते जदों वो 14 दे सीमा नूं कहणगे भी नहीं ये 14 गिनती विच है, असीम दी गल करनगे, उदों पातालां पाताल लख आगासां आगास भी करनगे। हुण ये दोनों तुकां एक गुरु नानक दियां ने। एक पासे गुरु नानक साहब कह रहे हैं सलोक 14 हट नाले, 14 हट्टियां ने, 14 बाजार ने, पर यह इस्लाम का कंसैप्ट है कि 14 तबक। इनू गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी वरत्या। लोक 14 के बिखे जग जाप ही जे जाप, पर इनू समुचता च लैना। मेरी बेनती है कि जो कोई तू माने, जेड़ा 14 कह रहा है वही बाबा कह रहा, पातालां पाताल लख आगासां आगास। सानू सुरत नाल गल, गुरु ग्रंथ साहिब च कोई आपा विरोधी शब्द नहीं, कोई पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च आपा विरोधी बाणी नहीं। सिर्फ कारण एवे साडी सुरत आपा विरोधी है। जिदन सुरत अपने कचरे नूं बाहर सड़ देगी ना, ते गुरु की मत नूं लै लैगी, कोई भी एक दूजे नूं कट्टण वाला शब्द नहीं मिलेगा। इत्थे हुण मैं फिर बेनती करांगा, दोए दीवे गुरु नानक साहिब कहंदे ने, दो दीवे ने, चंद्रमा ते सूरज। 14 हट नाले, सारा संसार खट्टियां है। हुण 14 का अर्थ जो कोई दा अर्थ ये प्लैनेट नहीं करना। मैं अज एक राती शायद अज सवेरे कथा किते कीती, साइंस जेडे बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने पता है, साइंस ये गल सिद्ध कर चुकी है कि साडी धरती दी रब दी बनाई कोई सृष्टि विच इन्नी हस्ती है, जिवें समुंदर दे किनारे मीलों च बीच है, ते उस बीच दे विच एक निक्का जिहा रेत दा कण डिग्गा होवे। ये सिद्ध किया विद्वानां ने कि इस धरती दी जिहड़ी होंद है, जो कुछ रब ने सिरजिया उहदे सामने सिर्फ इन्नी को है जिवें समुंदर दे किनारे पे होए एक रेत दे कण दी कीमत है। ते अपनी बंदा फुलिया नहीं समांदा, मेरे वर्गा कोई आई नहीं। जदों झाती मार के विराटता देखो, उहदे बनाए हुए जिहड़े तारे, जिहड़े एक सकिंट विच लखां किलोमीटर रोशनी चीरदी आ रही है, वो तारियां दी रोशनी अजे इत्थों तक नहीं पहुंची, ते बंदे दी की हस्ती उत्थे पहुंच सकेगा। मैं फिर विषय तो दूर नहीं जावांगा। दोए दीवे, चंद्रमा ते सूरज दो दीवे ने, 14 खट नाले। जो कुछ रब ने बनाया ये बाजार है, जेते जी तेते वणजारे। इत्थे जिन्ने भी जीव आए ने, हर जीव परमात्मा ने वणजारा बना के भेजा। फिर सुनियो, दोए दीवे 14 हट नाले, जेते जी तेते वणजारे। खुले खट हुआ व्यापार। जिस दिन की सृष्टि बनी ते मानव होंद विच आया, उस दिन का यह व्यापार होना शुरू हो गया। हट्टी खुल गई। जो पहुंचा सो चलन खार। जेड़ा इत्थे पहुंचा, जिहदा जन्म होया, उन्हें एक दिन इस बाजार नूं छड्ड के तुरना जरूर है। इस नुकते नूं फिर सुनियो, मेरी बेनती है जी, जिन्ने असीं पहुंचे हैं आपां बाजार छड्डना नहीं। जो पहुंचा सो चलन खार। अगे गुरु कहंदा, धर्म दलाल पाए निशान। जदे व्यापारी ने पता नहीं, जदों सौदा जां पै करदे ने, वो अव्वल दोम सेम इस तरह कहंदे, 1 नंबर दा माल, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह कहंदे। कहंदे बंदिया, तू जन्म तो लैके मौत तक जिन्ने कर्म करेगा, रब दा बनाया होया विधान धर्म जेड़ा है, वो तेरे हर कर्म ते निशानी पाई जाएगा। आ काम तेरा लेखे विच पैना, आ काम तेरे सजा का कारण बनेगा। फिर बेनती, जिन्ने असीं करने हुण इनू फिर थोड़ा जिहा बाणी चौवा देखिए। अज इनू कहना धर्म दलाल, इनू गुरु जी ने जपजी साहिब च कहा, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्मा दूर।
ਇਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਚ ਕਿਹਾ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਪੈ ਜਾਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰੋਗਤਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ। ਬਨ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਗਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਾਲ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਘਰ ਆਏ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਲਾਹ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾ। ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਬਚ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਪ, ਲਾਹ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਵਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅਰਥ ਆਤਮ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ ਕਿਆ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ, ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ठाकुर गाइए आत्म जिन्हें सगल वस्ता कै जाका सतगुरु पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन साए समावन संग। जन कै चरण वसा मेरा हियर है संग पुनीता देखी। जन की धूर देहो कृपा निध नानक कै सुख ही। ये अज दे दो हुक्म ने जो सतगुरु ने सानू बख्शिश कीते। अज आपां धन धन बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, तो मैं सिर्फ ते सिर्फ उन्हां दे, क्योंकि भाई साहब बैठे आ सारियां नूं पता है साडे कोल उन्हां दे जन्म नाल संबंधित, उन्हां दे जीवन नाल संबंधित सिर्फ 2-3 साखियां ने। इस तो वध नहीं साडे कोल होगा कुछ, भावें कोई शिंगार लै। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे आप सब नूं पता है 4 साहिबजादे ने। पहली गल असी बेटे नहीं शब्द वरतते, उंज कह देने लखते जिगर गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र, पर शब्द असी साहिबजादे वरतने। एक शब्द असी पातशाह वरतने। उंज शब्द बादशाह भी आउंदा है, पातशाह भी आउंदा है, ते गुरबाणी विच पातशाह भी आउंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कल मैं अर्ज की, भाई नंद लाल साहब ने बादशाह शब्द भी वरते। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आदेश अंदेश, मैं कल कहा सी अंदेश दर ते चिंतन करने वाला। रब नूं हक हक आदेश, हक नूं प्यार करने वाला। उत्थे लफ्ज आदेश नहीं, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह। ये 2 लफ्ज ने। बाद दा लफ्जी अर्थ हुंदा है जी सिंघासन। ये 2 लफ्जां जिवें पातशाह बादशाह, ते तीसरा शब्द है पादशाह, दद्दे नाल भी है। बाद पाद और पात, इन्हां तिन्नां दा अर्थ है कि सिंघासन, ते शाह दा अर्थ है सिंघासन दा मालक। जदों असी पातशाह बादशाह पादशाह कहने आ, इहदा लफ्जी अर्थ है सिंघासन दा मालक, पातशाह महाराजा। हुण अगे है शब्द साहिबजादा। साहिबजादा पातशाह दे पुत्र नूं कहा जांदा है, राजकुमार नूं कहा जांदा है। एक अर्थ इहदे भी कीते साहिब दा अर्थ है मालक स्वामी, ते यादा दा अर्थ है जाया होया जणिया होया। साहिबजादे दा अर्थ एवे कि मेरे पातशाह दा जणिया होया। बड़े प्यारे शब्द ने, ये अरब च ज्यादा वरतिंदे सन जी पातशाह। थोड़ी जी इस संबंधी मैं बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी 3 दिनों की कथा अपनी इको चल रही है कि एक पासे दुनिया की बादशाही है पातशाही है, ते दूजे पासे गुरु नानक दे घर की पातशाही है। इहदे विच अंतर की है मैं अर्ज करना हुन्ना। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सब तो पहला शब्द दरबार, क्योंकि जिन्ने लफ्ज तुसीं वरदे हो ये मंजी साहिब भी ऐतकी मैं कह सा। हुण असीं कहने दीवान सजिया है, दीवान का संबंध भी बादशाहत नाल है। जिहड़ा दीवान लफ्ज है इहदा संबंध बादशाहत नाल है। दीवान का संबंध केवल धार्मिक प्रोग्राम नाल नहीं। जे दीवान लफ्ज की गहराई जांगे दा संबंध है जिथे बादशाह का दरबार लगता है। दीवान दरबार हुक्मनामा चंदोवा चौर चोबदार, ये सारे दे सारे शब्द जिहड़े ने याद रखियो ये पातशाही की व्याख्या करते हैं। इस बेनती नूं फिर मैं दोहरान लगा कि ये लफ्ज ये नहीं, ये पुरातन लफ्ज चल चले आ रहे सन। ये सारे दे सारे लफ्ज जिहड़े ने बादशाह वास्ते सन कि बादशाह दा चंदोवा, बादशाह दा चौबदार, बादशाह दा चौरबरदार, बादशाह दा दीवान, दीवाने आम दीवाने खास हुंदा सी महाराजा रणजीत सिंह दा। फिर एक शब्द असीं कहने बादशाह दा हुक्म, बादशाह दा नगारा। ये जिन्ने शब्द ने प्यारिओ मेरी बेनती इहनूं घुट के पल्ले बन्निओ। नगारा, चंदोवा, दीवान, चौबदार, चौरबरदार, हुक्मनामा, ये सारे दे सारे शब्द जिहड़े ने ये दुनिया दे बादशाह दे नाल जुड़े हुए सन, क्योंकि उहदे कोल ताकत है। गुरु साहब ने बड़ी बख्शिश की साडे ते। गुलाम लफ्ज गुरु जी ने भी वरतिया।
वो सारा कुछ बदल के रख दिता। मैं क्या भी जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करने प्यारिओ, जिन्नी पुरातन शब्दावली वरती जाती सी, गुरु ने शब्दावली उही पकड़ के रखी, वो अर्थ बदल के रख दिते। ढाडी सिंह बैठे, असीं कहने भी गुलामी बड़ी गलत है। मैं पिछले दिन क्या, शरीरिक गुलामी, मानसिक गुलामी। गुलाम लफ्ज त्रासदीक है, पर गुरु ने गुलाम लफ्ज बदल दिता, इहदे अर्थ ही बदल दिते। उन्हां क्या, बंदे दी गुलामी करन दी थां तू परमात्मा दी गुलामी कर लै। इसे करके गुरु ने अपने लिए शब्द लाला गोला भी वरतिया। मुल खरीदी, लफ्ज चेंज नहीं कर दिते। लाला दा अर्थ गुलाम हुंदा है। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी खाट बिकाना, जित लाया तित लागा। कबीर साहब वर्गा महापुरख वो कहता, को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे कर दवाजा, पर अपने आप को गुलाम कहता। कहो कबीर गुलाम घर का जी आए भावें मां। गुलाम लफ्ज बदल के रख दिता। मैं आप बेनती करा, गुरु साहब जी ने ये जिन्ने संसारी डर सन बादशाहां दे, इन्हां नूं बदल के अकाल पुरख नाल ते सतगुरु नाल जोड़ दिता। जिवें एक पौड़ी पढ़ी जाती है दरबार साहब अंदर, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त। मैं आउणा पातशाह ते साहिबजादा ते साहिबजादियां दे जेड़े चार नाम ने, जिवें पंज प्यारियां दे नाम सचमुच सिੱਖੀ दे सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह दे चारां पुत्रां दे नाम भी दृढ़ता की व्याख्या करते हैं। क्योंकि अज आपां शहीदी बारे कुछ नहीं बोलना, कल नूं अर्ज करांगा। हुण ये जिहड़ा शब्द पातशाह है, फलाने पातशाह दा तख्त बड़ा वड्डा, पर गुरु साहब ने क्या नहीं, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छाते ते सारे लफ्ज ही वरते। चंदोवा वरत्या, तख्त वरत्या, निश्चल छत्र वरत्या। इहदा मतलब सी जेड़ी बंदे अंदरे गुलामी पई है कि बादशाह है, इहदा राज है, इहदा भाग है। मैं किसी नूं कटाक्ष बना के नहीं, पर मैं एक बेनती पहले दिन मॉडल टाउन भी की, बंदे दी ये फितरत है। साडे पंजाबी जी कहंदे आ कि तपों राज ते राजों नरक, असीं कहने ना, ये पंजाबी शब्द वरतने। उंज गुरु अर्जुन साहब ने क्या, दानक परा पूरबेन पुचंते महीप ते, पूरबले पूजे हुए पुन करके राज भाग मिलते ने। जदों बंदा राज पदवी ते बैठता है, बपीत बुद्धिअंग मारत लोक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हंकारी हो जाता है। बाणी दे बचन ने कि दानक परा पूरबेन पुचंते महीप ते, बपरीत बुद्धिअंग मारत लोकै, नानक चिरंग काल दुख भोगते। जदों हंकारी हो के मजलूमां नूं मारदा ते लम्मा समा इहदा जन्म ते मरण दा ताना बन जांदा। सतगुरु ने ते शब्द दिता कि पहला परमात्मा लई कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह नेचल चौर छत। परमात्मा नूं कहा जिथे गुरु शब्द नहीं आया। तुसीं एक पाठ सवेरे ते शाम करदे हो, थोड़ा जिहा पाठ भेजदे, अर्थ इक्को ही ने। सवेरे पाठ करने, सो पातशाह शाह पात साहिब, उथे पात है ना जपजी साहिब च, अर्थ इक्को ही ने। मैं इस करके क्या, बादशाह पातशाह ते पातशाह तिन्ने लफ्ज इन्हां दे अर्थ इक्को ही ने। मैं पात दे अर्थ की, पात जात पात नहीं करना, ये अर्थ होर हो जाणगे। इत्थे पात दा अर्थ है तखत ते शाह दा अर्थ है तखत दा मालक। सो पातशाह जिहड़ा वड्डा तेरा दरबार सच्चा तो तख्त, सो पातशाह शाह पात साहिब। इस नूं फिर सुनियो, ओ पातशाह ते जेड़े शाह अपने आप नूं कहांदे ने, उन्हां शाह दा पात साहिब, साहिब दा अर्थ है मालक। मेरा परमात्मा पातशाह है, शाह दा भी शाह है। ते गुरु नानक साहिब कहंदा, उस परमात्मा दे हुक्म विच रहना तेरी जिंदगी दा मनोरथ होना चाहिए। तुसी रोज पढ़दे, सो पातशाह शाह पात साहिब, नानक रहन रजाई, ओदे रजा च रहो। दुनिया दे पातशाह दे रजा अगे झुकिया बैठा है, उस पातशाह दी रजा मन, ते ओदा राज केवल हिंदुस्तान तक थोड़ा है। ये तो बंदे दियां बनाईयां दीवारां ने। ओए आ मेरा राज, आ तेरा राज। पूर्ण सिंह कहंदा है कि सिख उस सल्तनत विच वसदा है जिहदी ना कोई आकाश की खद हुंदी है, ना पानी की खद हुंदी है, ते ना धरातल की खद हुंदी है। सचमुच मैं एक बारी कहा सी
कि जदों महाराज दा सी ना जी पूर्व पटना साहब, वो तकरीबन सारे बोलते सन हिंदुस्तान के राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र निर्माता या राष्ट्र नाल जोड़ते हैं वार वार गुरु। मैं एक बेनती करांगा, तुसी जमीन दे किसी भी खिते च बैठे हो, सरबत दा भला मंगो, पर गुरु नू कदी खिते नाल ना जोड़ियो, क्योंकि गुरु करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक हुंदा है। तुसी ये कहो, एक सुल्तान नू तुसी जगीरदार कहो, ओदी इज्जत नहीं, ओदा अपमान है। तू सुल्तान कहा हो मियां तेरी कवन वढाई। मैं इस करके कहा, गुरु नानक साहब दी जोत नू पंजाब तक, हिंदुस्तान तक, खिमा करियो, बिल्कुल इत्थों तक सीमित ना रखियो। भाई गुरु अर्जुन देव कहंदा है, गुरु नानक साहब दा शब्द वो सारी सृष्टि दा उद्धार करता है। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी, एक नाम धर्म प्रकट सकल हर भवन में। केवल तीन भवन नहीं, इत्थे तीन भी शब्द नहीं वरत्या, हर भवन में प्रकट सकल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। मैं फिर बेनती करा, एक पातशाह क्या परमेश्वर ने, दूजा गुरु घर दे अंदर जी। मैं चमकौर साहब विचार आप शुरू की सी कि गुरु नानक ने खलेमी राज चलाया है, सच दा राज चलाया है। तो मैं उस दिन भी क्या, जिवें हुण ज्ञानी जी अज कह भी रहे सन भी दिल्ली जो कुछ हो रहा है, सारा समाज उहदे नाल इकत्तर हो रहा है। तो मैं इमोशनल कर ली नहीं, एक गल जेहन विच रख के तुरियो, सिखो एवें नैगेटिव वैन ना पाई जाया करिए स्टेजां ते। सिख मर गए हो, सिख खत्म हो गए हो, असीं कोई नहीं जे रहना होए। सच्ची मुच्ची तकरीबन पौना घंटा संगत नूं इन्नी क नैगेटिव एनर्जी देने आ, वो बाहर निकलते एक दूजे वाल त्यूड़ियां वट्टी बैठे हुंदे। नहीं, मैं तुहानूं इक्को बेनती करांगा, आ साडे लुधियाने दे नेड़े आ कुपरहीड़े तुसीं जांदे हो, ढाडी साहब बैठे आ, पौनी कौम 35,000 कोई 32,000 कहंदा है ना, चलो गिनती दा ते कोई पता ही नहीं, तकरीबन पौनी कौम शब्द वरता। उस वड्डे घल्लू घारे च कतल किए गए, मार दिते गए, अपनी शब्दावली शहीद कह लीए। पर मैनू दसो कि वो इन्ना कुछ खोन के बावजूद साडा इतिहास कहता है कि अबदाली दे कैंप सामने एक बेहोश होया बजुर्ग निहंग सिंह उठदा है, ओदे कैंप सामने खलो के कहंदा, अबदाली तू जश्न मना रहा है, अजे तत बाकी बचे गुरु गोबिंद सिंह दा, तू बाहर निकल, मैं तेरे नाल मुकाबला करना है। मैं इमोशनल करनी, कहंदा ये नहीं जे कदी खत्म होना। एवें प्लीज प्रचारक वीरां नूं भी एवें आपां राजनीति लोकां दीयां कलाबाजियां हुंदियां, मर गए जी, खप गए जी। मैं कल गया, वो 5-5 साल के बच्चे ने जिहड़े बैठे ने, 5 साल का, अज तो 5-6 साल पहला इसी सारी जवानी खत्म हो गई जी। नहीं प्यारिओ, ये गुरु गोबिंद सिंह दे लालां दा खून पिया इन्हां दीयां जड़ां दे विच, सच दा खून है। मैं फिर उस विषय नूं रख के कि गुरु साहब लई फिर एक शब्द चलिया, वो है पातशाह। गुरु नानक साहब नूं फकीर भी क्या, ते जदों गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़ी ते सब तो पहला गुरु के रबाबियां ने जेड़े शब्द वरते, वो सारे पातशाही वाले वरते। वो शब्द है, होवै सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया, तुद डिठे। सच्चे पातशाह आ गया गुरु ली उत्थे, पहला पातशाह परमात्मा लई, मैं आउणा पातशाह ते साहिबजादे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह बादशाह भी क्या। ते एक बारी मैं अर्थ पढ़े तो किसी ने बाद दे अर्थ किते झगड़ा, भी बादशाह ते झगड़ालू हुंदे ने। जदों मैं फिर फारसी वेख्या, मैं कहा नहीं, बाद दा अर्थ उत्ते विवाद नहीं, ओदा अर्थ है सल्तनत, तखत, तखत दा मालक। होवे सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। जदों उस दिन क्या गुरु अर्जुन देव दा रबाबियां ने जिक्र किया, उन्हें क्या तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोवा, ये शब्द वरते। पातशाह शब्द सिखा ने अपने सतगुरु लिए वरत्या। शायद ये लाहौर की घटना है कि सिखां दे सीने विच गुरु गोबिंद सिंह जी की थां है। मैं पिछली बारी भी कहा सी, मैं अज इहनूं दोहरान लगा, सरदार कपूर सिंह यूनीवर्सिटी बोलन गए,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਬੋਧਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵਦਾ, ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਲਹਿਣੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਕਾਵਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੌਰੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਗੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੌਰੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਖੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਲਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਰੱਖੇ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਬਬੇਕਸਰ ਤੇ 5ਵਾਂ ਕੌਲਸਰ। 5 ਕਿਲੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਤਾੜਾਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ। ਪਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਖਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਰਹੇ,
ਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਲ ਵੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਪੂਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਖਲ ਵੀ ਵਗ ਗਏ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਓਏ, ਓਪਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। 5 ਗੁਣ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ, ਮੋਹਕਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਨਾ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਤੇ ਇਹ 5 ਗੁਣ ਕਹਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਧਰਮ ਨਾ ਕਿਓ। ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਪੁਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਨਮਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਝ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। मैं वडियाई नहीं करता, मैं अगे चला गया। मैं की होया? कहता सरदार साहब मुझको वाशरूम का पता नहीं। वो कहने ने बेदबी की। मैं कहना नहीं, तुसी जेड़ियां इहनूं सोटियां मारियां ने, तुसी धर्मी नहीं। दया मूल है, उस बंदे नूं समझ कोई नहीं। ते आपां अपने आप नूं धर्मी दस्सण लई दूजे ते जदों जुल्म करने, वो धर्म नहीं हुंदा, वो अंदर दी कायरता हुंदी है। गुस्सा ना करियो इस चीज़ का। दया तो बिना धर्म है ही नहीं। इसे करके गुरु नानक ने जदों धर्म की व्याख्या की, असीं धर्म की व्याख्या करने संप्रदा, सिख धर्म, हिंदू धर्म। वो गुरमुखो जदों असीं जम्मे भी नहीं सा, सिख धर्म भी नहीं सी होया, धर्म तो उदों भी सी। धर्म तो बिना तो कुछ रह ही नहीं सकता। गुरु जी ने कहा धौल धर्म दया का पूत। दया मां है, धर्म पुत्र है। कभी मां तो बिना पुत्र हुंदा देखिया? जे मां तो बिना पुत्र नहीं, चेते रखो, जिस संप्रदा विच कट्टरता आ जाए, अज्ञानता आ जाए, जुल्मी हो जान, वो धर्म नहीं हुंदा। सिर्फ वो धर्म दे बुरके दे थल्ले एक पाप दी जंज हुंदी है। गुरु जी ने कहा असीं कहने दया है, दया चो धर्म है। ते धर्म कदी आलसपुणा नहीं सिखांदा, धर्म हिम्मत दिंदा है। धर्म अगां को तरांग दसदा है। धर्म कहता आखिरी सवाल, जिस दिन साहिबजादे इत्थे रात शरीर पै रहे, मैं कल गल करांगा, आप सब नूं पता रात बॉडी पई रही इत्थे, तन पै रहे। वेखण वाले ते कहंदे होणगे गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दे शरीर बाहर पए आ, पर किसे नूं पता नहीं कि आ सिर्फ 4-5 साल लंघन दी देर। चेते रखियो, जिथे शरीर पए ते फतेहगढ़ दा निशान झुलेगा। ये क्यों? इहदा कारण है कि गुरु ने जेड़ी स्पीट बाणी ते निश्चय च भर दित्ती है, ओहदा मुकाबला ना कदी फौजां कर सकदियां, ना कदी बहु गिनती कर सकदी। दृढ़ इरादे बड़ी वड्डी चीज़ हुंदे आ। इसे करके गुरु कहंदा सिखां नूं भरोसा दान ते विसाह दान। मैं आप नूं फिर बेनती कर लगा, विषय तो दूर नहीं जावांगा, मैनूं पता है सिंघा जाना भी है, थोड़े जे अर्थ करके। दया है, धर्म है। धर्म कदी भी आलसपुणा, धर्म हिम्मत दिंदा है, उद्यम करे भलके प्रभाती। धर्म कहंदा कोई गल नहीं, मेरा गुरु नाल है। जदों ये 3 गल्लां, मोहकम, मोहकम दा अर्थ पक्का, पीढ़ा, दृढ़, दया होवे, धर्म होवे, नाल तीजा गुण हिम्मत होवे, मोहकम होवे। जेड़ी साहिबी लई लोक तरले मारदे आ, मेरा गुरु कहंदा सच एवे 4 गुण हो जाण ते तैनूं मैं साहिब बना दिया। चलो ये 5 गुण हो गए जी, दया, धर्म, हिम्मत, मोहकम, साहिब, ये 5 गुण ने। मेरे मन च जाया बाबा जी
ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਫਤਿਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬੈਠਦਾ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਨਾ ਖੇਡਿਓ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੀ ਕਹੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਹਮਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਸ਼ਬਦ, ਅਜਿੱਤ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਲਾਗਿਓ, ਕਰੰਗ ਲੈ ਕਮਾਨ ਗਹਣਗ ਬਾਣ ਤਾਣਗ ਸਭੈ ਵੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਗੰਗ ਚਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ परमात्मा तेरी किरपा हुई भई जीत मेरी किरपा काल केरी। घर आए ते नाम रखिया अजीत। अजीत दा लफ्जी अर्थ है अजित, अपराजित। लफ्ज हिंदी दा वरत लईए अपराजित, जिन्हों कोई पराजित कर ही नहीं सकता। सीधे पंजाबी शब्द जिन्हों कोई हरा ही नहीं सकता। नाम किन्ने कमाल दा रखिया अजीत सिंह। शब्द वरता चलो अजीत नाम रखिया, एडा वड्डा नाम दे दिता। सिखो ये चार साहिबजादियां दे नाम साडी रहिंदी दुनिया तक वाही करनगे कि कोई नहीं जम्मिया मेरे पुत्र नूं अंदर ते बाहरों हरा सके। अंदरों इनू वासना नहीं हरा सकेगी, बाहरों इनू दुश्मन नहीं हरा सकेगा। जोरे तेग विच ये अल्लाह यार खां जोगी दा नहीं, ये जोरे तेग दा शेर है। जदों साहिबजादे दी गल करने, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। अजीत सिंह रखिया। बाबा अजीत सिंह ने जंगा लड़ियां, जिते। अखीर चमकौर दी गड़ी शहादत दा जाम पीता। अजित सूरमे ने सीने विच वजियां उन्हां दे तीर। दूसरे पुत्र दा नाम रखिया जुझार। जुझार दे अर्थ की ने? अजीत जिन्हों कोई जित ना सके, ते जुझार दा अर्थ है जूझण वाला, युद्ध करने वाला। प्यारिओ जेड़ा जुझारू होवेगा वो अजित जरूर होवेगा। जेड़ा जुझारू नहीं, जिन्हें जूझना ही कोई नहीं, उन्हें जित के की होना। अजित वो है जेड़ा जुझार है। चेते रखे उन्होंने इस तरह अर्थ करिए। अजित अजीत सिंह। जुझार दा अर्थ है युद्ध करने वाला, जूझण वाला। ते तीसरे साहिबजादे दा नाम रखिया जोरावर सिंह। ये दो शब्द ने, जोर जोर आवर। ये जे संधि छेद करांगे जोरावर, ये जोरावर है, जोरावर ने जजे थले बिंदी है जोरावर। जोर आवर, आवर अर्थ है वाला। जोरावर दा अर्थ है ताकत वाला, जोर वाला, शक्ति वाला। क्या कमाल कर दिती। अजीत होवेगा ते ओहदे च गुण होना चाहिए जूझण दा।
जुझारू होवे ते अगली गल जोरावर, एवें कमजोर ना होवे, ओदे कल लड़न वाली शक्ति भी रखदा होवे। फिर बेनती, अजीत जिन्हों जिते ना, जुझार जूझण वाला, जोरावर दा अर्थ करांगे ताकत वाला। प्यारिओ जेड़ा जोरावर भी है, जेड़ा जुझार भी है, वो अजीत है, ते जेड़ा अजीत है फतेह ओदे पैर चुमदी हुंदी है। पर इत्थे अर्थ गुरु जी ने दिता, फतेह सिंह नां रखिया बाबा जी दा, जिन्हां दा सी अज जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। फतेह दा अर्थ हुंदा कामयाबी, फतेह दा अर्थ हुंदा अपनी मंजिल ते पहुंच जाना। फतेह दा अर्थ हुंदा कि सचमुच अंदर बाहर नूं अपने पूरे गिरफ्त विच लै लेना। सन्मानयोग बाबा फतेह सिंह जी दा जन्म आनंदपुर साहिब दी धरती ते होया। थोड़ा जिहा आप जी मैं बेनती करके समाप्ति करांगा। सन्मानयोग माता सुंदरी जी दी कुख चों बाबा अजीत सिंह जी दा जन्म होया। सन्मानयोग माता जीतो जी दी कुख चों बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरा, ये श्रोमणी कमेटी ने छापिया इस तरह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी दा जन्म हुंदा है। बाबा फतेह सिंह जी, उन्होंने अपनी मां मात जीतो दी गोद सिर्फ तकरीबन 1 साल ते 10 महीने मां दी गोद मानी है, क्योंकि माता जीतो जी अकाल चलाना कर गए। बाबा फतेह सिंह जी मैं 1 साल 10 महीने के, पौने 2 साल कहते, चलो वही शब्द बन गए। 1 साल ते 10 महीने मां दी गोद मानी, माता जीतो जी चलाना कर गए। उस तो बाद सन्मानयोग माता गुजरी जी ने अपने पोते की परवरिश करनी शुरू की। सीतल साहब लिखते ने, थोड़ी जी मैं बेनती कर ली, कहते जदों माता जीतो जी का संस्कार करके आए तो आखिर पौने 2 साल का बच्चा अपनी मां नूं लभेगा नहीं। पौने 2 साल का बीबियां बैठियां ने, पौने 2 साल का बच्चा कभी मंजे तो मां परां करदी गोदी तो, ते हुण तां नहीं। पहला मैनूं पता है अपने पिंडां 3-3 साल 2.5 साल के बच्चे दुध पींदे सन मां दा। कहते संस्कार करके आए ने ते मात गुजरी ने अपने पोते नूं अपने नाल असवाया। रात नूं कई बारी उठदे ने, मां नूं लभदे ने। उत्थे फिर शीतल साहब लिखदे ने, जदों मां नूं लभदे ने ते माता गुजरी जी रूं दी पूणी बना के, बत्ती बना के दुध विच भे के बाबा फतेह सिंह नूं दुध पिआंदी है। गुरु गोबिंद सिंह बहुत प्यार करते हैं इस बच्चे। वैसे तो सारिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती होर, ਇਹਦਾ जिक्र ये भाई कान सिंह नाभा ने किया। वैसे रवायत है, पद्म साहब ने भी लिखे है, प्यारा सिंह उन्होंने, डॉक्टर नेकी ने भी लिखे है, विद्वाना कई लिखे कि बाबा फतेह सिंह बहुत लाड करते हैं बाकी भरा भी। एक दिन की होया कि सारे साहिबजादे खेड रहे हैं, तो मैं रवायत शब्द वरत्या, परंपरा वरत्या, क्या जाता है। सारे साहिबजादे खेड रहे हैं, ये पहली बारी मर्ज भी की सी। ते बाबा फतेह सिंह जी छोटे ने सब तो, माता जीतो जी चलाना कर चुके ने। आए कह लगे मैं भी खेडना। ते साहिबजादा जी वड्डे, उन्होंने की कीता, कुछड़ चुक लिया बाबा अजीत सिंह उन्होंने। चलो वड्डिया ने कह लगे तू अजे छोटा है, ते तू कद वेख अपना, तू छोटा है, तू ना साडे नाल खेड। इतिहास कहंदा अंदर चले गए ते उन्होंने कुछ हजूर की दस्तार कहते अंदर 1 दस्तार बनी, 2 बनी, 3 बनियां, उत्ते फरला। जदों एडी वड्डी दस्तार सजा ली, दमाला सजाया, ते कड़कदी आवाज कहने देखो मेरे नाल खलो के देखो मैं भी वड्डा हो गया हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी आए ते मोढियां तो पकड़ लियो ने। महाराज ने देखा जदों पुत्र कह रहे मैं वड्डा हो गया, ते गुरु गोबिंद सिंह आए, पकड़ के सीने न लाया ते कुछड़ चुक के कहंदे ने कौन कहंदा है मेरा फतेह छोटा है, तू छोटा नहीं, तू तो साडा बाबा है। सन्मान दिता, तू वड्डा है, तू छोटा नहीं, तू वड्डा है। सचमुच इस उम्र विच बाबा जी ने बड़ा वड्डा कर। उस दिन भाई साहब 5 सिंह, भाई उदय सिंह, भाई टहल सिंह, मैं नाम दस देना, भाई उदय सिंह, भाई टहल सिंह,
अपने भाई ईशर सिंह, भाई देवा सिंह ते भाई सुलखन सिंह, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। नीले वस्त्र बिठा पा के उन्होंने बाबा फतेह सिंह दी ताबिया बिठाया। निहंग सिंह मंनदे आ, कहन लगे पुत तेरा भी एक पंथ, इस पंथ च वख नहीं करना, तेरा पंथ होवेगा, किसी अगे झुकेगा नहीं, किसी दी कान नहीं मन्नेगा, मौत नूं मखौल करेगा। प्यारिओ जिन्हों छोटा कहंदे सन, आ निहंग सिंह जिहड़ा फर्रा छड्डदे ने बाबा फतेह सिंह दा दिता होया है। मैं आप नूं सिर्फ एक बेनती करांगा, उस धन धन बाबा फतेह सिंह जिन्हां दा अज असीं जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, फिर यह लफ्ज़ इन्ना सिखां च वरतिया गया। मैं कहना गुरु साहब जी तुसीं फतेह दिता, आखिरी शब्द सानूं आ फतेहगढ़ बनिया, बनाया बंदा सिंह बहादुर जी ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दिता। साडा फतेहगढ़ है, साडी वाहिगुरू जी की फतेह है, साडी देग तेग फतेह है। किन्ने कुल तुसीं फतेह नाल जोड़ लोगे, हर मैदान फतेह है। मैं कहना जो फतेह शब्द वरतना वा, वाहिगुरू जी की फतेह, हर मैदान फतेह, देग तेग फतेह। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह दा 7 साल दा पुत्र नीयां विच खलोता सामने दिसदा, फतेह ओहदे करके मिलदी पई है। ऐसे धन धन बाबा फतेह सिंह जी, उन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। आप नूं बहुत बहुत वधाई होवे, बहुत बहुत वधाई। ते गुरु नानक साहब ने कृपा की, भाई साहब ने शब्द पढ़िया, गुज्जी छन्नी ना ही बात। गुज्जी छन्नी का अर्थ होंदा गल लुकी छपी नहीं, ये लुकी नहीं, ये सब च प्रगट है। गुरु नानक तुठा किन्नी दा, इत्थे गुरु नानक दा अर्थ गुरु नानक है। गुरु नानक साहब त्रुठे, उन्होंने दात दिती। प्यारिओ आओ ऐसे महान शहीदां नूं, जिवें भाई साहब भी कह के गया 25 दसंबर, तो मैं फिर बेनती करांगा, वखरेवा नहीं पर न्यारापन नहीं गवाना चाहिए। जिहड़ा क्रिसमस डे कहिंदे आ, ते कदी तुसीं देखियो, मैं एक किसी कम्यूनिटी का विरोधी नहीं, पर जे अगला अपनी गल करदा, वो साडे न्याणे थल्ले किताब डिग पे ना सिखां दे, अंज नहीं करदे आ, करते ने ना जी। ये क्यों करते हैं? ये क्रॉस बनाते हैं, एक क्रॉस बनाया। टाई जिहड़े हरभजन सिंह जोगी बड़ा कल्पदा हुंदा सी, वो कहंदा टाई पा के तुसीं बैठे हो, तुहाडे गल गल च क्रॉस पा दिता उन्होंने। किरपान पान तो भजदा ते टाई वड्डी ला के तुरिया फिरदा। आपां मेरी बेनती है कि सिੱਖੀ दी जिहड़ी दात है गुरु गोबिंद सिंह जी दी, अमृतधारी होइए, जिन्हां अमृत पान नहीं कीता, सभा ते अमृत सिखाया जाना है। ते एक बेनती उन्हां लई सारे अरदास करो। सच्चे पातशाह, ये नहीं पता किदी संप्रदा, मैं तो सच्ची मुच्ची क्या बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया। असीं एवें ईरखा च मारे पए, मेरी जथेबंदी है, तुहाडा धड़ा, ये साडी मर्यादा। उत्थे कोई नहीं पुछदा पिया, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह दा इक्को ही शब्द लिख देना चाहिए, मानस की जात सब है एक है पहचान दो। भाई साहब ने जिवें कहा, अगले साल तो मैनू आस है कि गुरुद्वारा कमेटी साडा सहयोग दै करेगी। असीं यतन करांगे जिहड़ा समागम चलदा है, ये इसे जन्म दिहाड़ा बाबा जी का इस तरह सारे मनाया करिए। तो साडी इच्छा भी ये, कोई ये नहीं भी असी कोई नाम बनाना आउणा है जां असी कोई इलैक्शन लड़नी है, सानू कामयाबी मिली है जी। एवें कहिए आ जो तुसी इन्ना समा टेक के सुनते हो, खिमा करियो, ये पहला नहीं सी। ये गुरु गोबिंद सिंह जी का वरतारा वरत्या है। कल नूं आपां ज्योति स्वरूप भाई रविंदर सिंह जी ते भाई सुखजिंदर सिंह जी दरबार साहब के कीर्तनीए, ते सिंह साहब जी ते सिंह साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी, ज्ञानी जसविंदर सिंह जी, आपां सहज पाठां दे भोग पाने जिन्हां जिन्हें कीते आ। जे रुमाला साहब लियाउणा होवे, जे उंज कोई सेवा उत्ते करनी होए, उस तरह कर रहे हो रुमाले तो बिना भी। हाँ जी, मेरी बेनती है कल नूं आपां तकरीबन 9:30 बजे मेरी इच्छा है भी श्लोकां दा पाठ करना शुरू कर देंगे। आप सब का धन्नवाद, बहुत टेक के सुनिया। मैं खेड़ा साहब जी का, मैनेजर साहब जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुहाडा भी जी। तो मैं कल भी एक गल कही सी, क्योंकि जिहड़े बंदा जिहड़ा ईरखा च मरिया पिया ना, उन्होंने ये शब्द भी दुखने ने भी वो जी उन्हों का फलाने का धन्नवाद कर रहा है, धन्नवाद। मैं एको गल कहा
जिन्ना सन्मान करोगे उन्ना सन्मान होवेगा, जिन्ना किसी की पग नूं हत्थ पाओगे उन्नी च रस्ते च लथेगे। सीधी जी गल है। इस करके आपां सन्मान करना सीखीए। सब का धन्नवाद जी, ते सब समुचे स्टाफ का, जिन्ने गुरसिखां तुहां सहयोग दिता सब का धन्नवाद। आओ सिर्फ मिनट दो भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट उन्होंने नाम जपीए सारे जने कि वाहिगुरू उन्होंने जिन्ने बैठे आ ना, तू गुरु गोबिंद सिंह विच वरत, तू बख्शिश कर, कोई पार्टी कोई धड़ा कुछ ना रहे, सिर्फ उन्हों की चढ़ती कला लई। ते बाबा फतेह सिंह महाराज, अज आपां नींद का जिक्र नहीं किया, बस यूं समझो कि गुरु गोबिंद सिंह घर आउंदे पे आ ते आउंदियां नूं बधाई मिलती है कि छोटा साहिबजादा जी का जन्म होया। आगमन शब्द वरतने उन्होंने ध्यान च रख के सिर्फ 3-4 मिनट नाम जपीए। उस तो बाद भाई साहब हुणी आप जी नूं सारी डिटेल दसणगे जी। वाहे गुरु, सारे कृपा करो, सारे कृपा करो प्लीज। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।